Hello, good morning everybody. Today topic is glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. What is G6PD deficiency? G6PD deficiency is an inherited sex-linked trait. The deficiency is inherited as a sex-linked disorder, although the deficiency occurs in the cell of the affected individual. It is more severe in RBC. G6PD is most essential for the formation of RBC because mature RBC have no mitochondria and are totally dependent on NADPH from PPP to regenerate glutathione from glutathione disulfide in the presence of glutathione reductase. If there is a deficiency of G6PD enzyme in the pathway, then insufficient production of NADPH result, which translate into insufficient glutathione. As a result, hemolytic anemia forms by detoxification of peroxide. The deficiency also increases the risk of neonatal jaundice. G6PD deficiency is the most common disease producing enzyme abnormalities in human, affecting more than 200 million individuals worldwide. The highest prevalence in the Middle East, tropical Africa and Asia. G6PD deficiency is caused by 400 different mutations in gene coding for G6PD. Only few of them causes the clinical symptoms of disease. What is the G6PD? G6PD is an metabolic enzyme. It involves in the pentose phosphate pathway, especially important in red blood cell metabolism. It also protects red blood cells from the effects of potentially harmful molecule called reactive oxygen species. देखिए ये फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले हम G6PD क्या है, एक एंजाइम है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमारा कहाँ बनता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ये ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है हमारा। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है NADPH2 बनाता है, और ये NADPH2 जो है ग्लूटाथायोन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर ये नहीं होगा NADPH2 तो जो भी हमारे इसमें सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड एनायन है, पेरोक्साइड आयन्स हैं, ये सारे जो आयन्स हैं ये क्या इनएक्टिवेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर जाएगी। ये पेरोक्साइड आयन्स जो हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिसके कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बैक्टीरियल वॉल में ये पोर्स कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल वॉल डैमेज हो जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। ये सेल्स हमारे सेल को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन चूँकि बॉडी सेल में NADPH2 बनता है, NADPH बनता है, और जो कि ग्लूटाथायोन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है, ये जितने भी ऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड्स हैं, पेरोक्साइड हैं, इनको वाटर फॉर्म में बदल देता है। अगर G6PD नहीं होगा तो NADPH2 नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये जितने भी पेरोक्साइड हैं ये वाटर में नहीं बदलेंगे, और ये क्या है कि हमारी रेड ब्लड सेल को डैमेज कर सकते हैं। क्यों डैमेज कर सकते हैं? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से NADPH नहीं बनता है, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा। ग्लूटाथायोन ना बनने की वजह से ये जो हमारे पेरोक्साइड और
सो पेरोक्साइड ये सब जो हैं ये उसमें नहीं बदल पाएंगे वाटर में और सेल डैमेज हो सकती है। Next, decrease amount of glutathione due to decreased production of NADH. Reduction of amount of NADPH in RBCs in G6PD deficiency causes reduction of oxide glutathione. Role of reduced glutathione in RBC. RBC में क्या रोल हो ग्लूटाथायोन का? reduced glutathione gets rid of reactive oxygen species including हाइड्रोजन peroxide. ये ग्लूटाथायोन क्या करता है कि जो भी हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनसे छुटकारा दिलाता है, जिसमें पेरोक्साइड भी है. Reduced glutathione helps to keep sulfhydryl group of hemoglobin protein in the reduced state. Reduced production of reduced glutathione result in a decrease in detoxification of peroxide. This causes damage of RBC membrane and hemolysis. जब RBC की वॉल डैमेज हो जाएगी तो hemolysis हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा. हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज डीनेचुरेटेड फॉर्मिंग इनसॉल्युबल मासेस, जिसको हम हिंज बॉडीज कहते हैं, जो कि रेड सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी सर्कुलेशन में ना पहुंच के ये माइक्रोफेजेस के द्वारा स्प्लीन और लीवर में पहुंचा दी जाती है, जिसकी वजह से ये क्या है, एनीमिया कॉज करती है. देखिए हिंज बॉडी हैं और ये सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती ये. Although deficiency of G6PD occur in the cell affect individual, it serves in RBCs because of only pathway to form NADPH in RBCs is pentose phosphate pathway. Using G6PD, individual who have inherited one or many G6PD mutation do not show clinical manifestation. Some patients may benefit from splenectomy as this is important site of the red cell destruction. Folic acid should be used in many disorder featuring a high red cell turnover. Although vitamin E and selenium have antioxidant property, their use does not decrease the severity of D6PD deficiency. क्या होता है, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा और बच्चों में जॉइंटिस भी होती है G6PD की डिफिशियंसी के कारण. एब्डोमिनल बैक पेन भी होता है, डिजीनेस हेडेक, इनरेगुलर ब्रीथिंग और पाल्पिटेशन. ये सिम्टम्स हैं G6PD डिफिशियंसी के. और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए G6PD डिफिशियंसी में? एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए, एनाल्जेसिक एस्प्रिन वगैरह नहीं खानी चाहिए, एंटी मलेरियल ड्रग जैसे प्रामाक्विन नहीं खानी चाहिए, एंटी न्यूप्लास्टिक जैसे डॉक्सोरिबिन है, एंटी मेथाग्लोबिनोमिक एजेंट मिथाइलिन ब्लू नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारी ड्रग्स हैं एनाल्जेसिक में. पैरिडियम नहीं खाना चाहिए, और एनहेलमेंटिक में बीटा नेप्थॉल, नेरिडाजोल और स्टिबोफेन नहीं खानी चाहिए. और फूड्स में क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, हमें डब्बा बंद जितना भी पैक्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस मीट नहीं खाना चाहिए, करेला नहीं खाना चाहिए, बीन्स नहीं खाना चाहिए, राजमा नहीं खाना चाहिए, मेंथा नहीं खाना चाहिए. और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, मेंथॉल है, आर्टिफिशियल कलर स्पेशली जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, जैसे ब्लू कलर, स्पेशली ब्लू कलर नहीं खाना चाहिए, कॉर्न शुगर नहीं खानी चाहिए, सोया मिल्क नहीं खाना चाहिए, चीज़ नहीं खानी चाहिए, और एस्कॉर्बिक एसिड नहीं खाना चाहिए, रेड वाइन नहीं पीनी चाहिए, एग प्लांट जैसे ब्रिंजल वगैरह नहीं खाना चाहिए, पीनट वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेगूम्स ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सॉस वगैरह, चाइनीज़ फूड्स, ये सब फास्ट फूड, ये सारे चीज़ें अगर आपको G6PD की डिफिशियंसी है तो ये सारी चीज़ें
नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे पालक है, ये क्या कहते हैं, ब्रोकली है, बीट जूस है, गार्लिक है, ये सारे फूड्स खाने चाहिए। एक बार हम फिर J6PD की बात कर लेते हैं। J6PD को हम ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये, और इसकी हेल्प से NADPH बनता है। NADPH जो है ग्लूटाथायोन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको ग्लूटाथायोन जो है ये हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को वाटर मॉलिक्यूल में बदल देता है। और अगर मान लीजिए नहीं बदलेगा ये, तो फिर ये जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं, जैसे पेरोक्साइड है, हाइड्रोक्सिल है, O2- है, ये सारे जिसको हम सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सब क्या करेंगे, ये रेड ब्लड सेल को डैमेज कर देंगे। क्यों रेड ब्लड सेल को ही क्यों डैमेज करेंगे और सेल को क्यों नहीं डैमेज करेंगे, क्योंकि बाकी सेल में हमारे NADPH बनता है, और RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस ना होने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से NADPH की सिंथेसिस नहीं हो पाती, जिससे कि ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा, और ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा तो ये जो हमारे पेरोक्साइड्स हैं ये हमारे चेंज नहीं होंगे। थैंक यू।